everyone, welcome back to our channel Dentistry to the Point. In this video, we are going to see another respiratory disease, namely bronchiectasis. Now the word bronchiectasis, in which ectasia का मतलब होता है dilatation, okay? And the definition also goes as abnormal and irreversible dilation or dilatation of the bronchi. Now dilatation या dilation का मतलब क्या होता है? It is nothing but when the bronchi it becomes enlarged or becomes wider or becomes more open, that is known as dilatation. मतलब जो bronchi है आपका वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, wide हो जाता है, more open हो जाता है, that is known as dilatation of the bronchi. Now what is a bronchi, bronchiole, alveoli, everything? This has been already taught in the respiratory video introduction. So I'll give the link in the description box and also pop an I button, so do check that out. अभी के लिए you can know a basic that the trachea divides into your left and right primary bronchi, okay, and so that part जब उस part का dilatation हो जाता है या वो wide हो जाता है, which is irreversible and abnormal, that is known as bronchiectasis. Now this is the basic. Now it can be focal or diffuse. Now focal मतलब involvement of airways within a limited region of the lung parenchyma, that is involving that is focusing on a particular area, that is involving a short area or involving a limited region is focal. And diffuse मतलब कि widespread in distribution है, widespread involvement है. Also it can be congenital or acquired. Congenital, as you know, it is present since birth. Acquired मतलब inherit कर लिया है, birth के बाद उसको आया है, that is. Now pathology. So the changes of bronchiectasis include, now what changes occur in the bronchi? So these can be divided into three types. First is destruction and inflammatory changes in the bronchi. Obviously, क्योंकि आपका bronchi उसका dilation हुआ है, मतलब वो enlarge हुआ है. So all the normal components which are present in your airways or in your bronchi, like your cartilage or the muscles or the elastic tissue, these are all destroyed and replaced by fibrosis. क्योंकि bronchi आपका dilate हुआ है, वो ठीक है बड़ा हुआ है, तो जो भी elastic tissues cartilage थे वो सब destroy हो चुके हैं, ठीक है, they have lost their elasticity and everything and they are replaced by fibrosis. Fibrosis मतलब कि थिकनिंग ऑफ द टिश्यू हुआ है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है या जो टिश्यूज वहाँ प्रेजेंट है उनका एकदम थिकनिंग हो गया है, विच इज लीडिंग टू द स्कारिंग. सेकेंड इज कलेक्शन ऑफ सिक्रीशन. ऑब्वियसली अब अभी तो क्या हुआ, देखो डायलिटेशन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि ब्रोंका एनलार्ज हुए हैं. तो पहले तो हमने उसके आउटर सरफेस की बात कर ली कि जो उसके इलास्टिक टिश्यूज है वो सब डैमेज हो गए, फाइब्रोसिस हो गया. सेकेंड क्या हुआ, अभी एनलार्ज हुआ है तो इसके बीच में कुछ जगह हुई है खाली, तो उसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सिक्रीशन. ओके, नाउ द सिक्रीशन कैन बी एनीथिंग, कोई पस कंटेनिंग मटेरियल हो सकता है विच कैन बी प्रेजेंट इन बिटवीन दी डायलेटेड एयरवेज लीडिंग टू एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्लिटरेशन. ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई भी म्यूकस या सीरस सिक्रीशंस भर जाएगा तो जो ट्रेकिया से आपका एयरवे आ रहा होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, तो उसका ऑब्लिटरेशन या फिर उसका ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. एंड माइक्रोस्कोपिकली यू सी थ्री थिंग्स. ओके, व्हाट फर्स्ट इज ब्रोंकियल एंड पेरीब्रोंकियल इन्फॉर्मेशन एंड फाइब्रोसिस. मतलब कि अभी मैंने जो ऊपर ही बोला कि ब्रोंकिया तो ठीक है, जो ब्रोंका इन्वॉल्व हो रहा है वो ठीक है, बट सराउंडिंग द ब्रोंका एरिया, दैट इज पेरीब्रोंकुलर एरिया, उसका इन्फ्लेमेशन होगा, उसके फाइब्रोसिस होंगे. डेल्ट इन द फर्स्ट पॉइंट, माइक्रोस्कोपिकली वो दिखेगा. अल्सरेशंस ऑफ द ब्रोंकियल वॉल भी दिख सकते हैं एंड म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया दिख सकता है, द म्यूकस ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट है. सो हाइपरप्लेजिया इज नथिंग बट एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द सेल्स. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स. सो वो ये तीन चेंजेस आपको माइक्रोस्कोपिकली दिख सकते हैं. नाउ वी टॉक टू द टाइप्स, दैट इज पैथोलॉजिकल टाइप्स बेस्ड ऑन द शेप ऑफ ब्रोंकाई. अब ब्रोंकाई कैसे शेप का हुआ है उस हिसाब से. सो दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज सिलेंड्रिकल ब्रोंकिएक्टासिस. Now what is this cylindrical bronchiectasis? मतलब कि ब्रोंकाई जो है that have assumed a uniformly dilated shape, मतलब वो एक जैसे पूरे जो है वाइड हुए हैं, एनलार्ज हुए हैं. वेरिकोस ब्रोंकिएक्टासिस, वेरिकोस का मतलब ही आपस में टॉर्चरस इरेगुलर होता है. सो ब्रोंकाई हैव अज्यूम्ड एन इरेगुलर और बीडेड पैटर्न ऑफ डायलिटेशन मिमिकिंग अ वेरिकोस वेन. सो टॉर्चरस और डायलेटेड पैटर्न. सेक्युलर, दैट इज अ सिस्टिक ब्रोंकिएक्टासिस. नाम से समझ आ रहा है कि सिस्ट टाइप होगा, मतलब उसके अंदर कुछ सिक्रीशंस होंगे, तो ब्रोंकिया हैव अज्यूम्ड अ बलून्ड और सिस्टिक अपीयरेंस. एंड दीज ऑल अपीयरेंसेस आर सीन ऑन ब्रोंकोस्कोपी और सिटी स्कैन. Moving on to the etiology. So etiology can also be divided into three parts, that is namely your infective causes,
नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज। नाम से समझ आ रहा है, इन्फेक्टिव कॉजेज है मतलब किसी तरह का बैक्टीरियल, फायरल, फंगल ओरिजिन या इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से हो रहा है। नॉन इन्फेक्टिव है मतलब अदर रीजंस हो गए और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एलर्जी, ये सब। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहां पर इसलिए हो रहा है। सिंपल इन्फेक्टिव कॉजेज बैक्टीरियल, वायरल, फंगल में fungal is a very rare cause. Okay, bacteria which are involved, the bacterial infections could be due to Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus and E. coli and etc. And viral causes can be because of measles, adenovirus and HIV. Talking about the non-infective causes, it could be any kind of allergy की वजह से, immunodeficiency causes, that is your weak immune system की वजह से, and cystic fibrosis. Now this cystic fibrosis, it accounts for almost your half of the cases of bronchiectasis. Okay, so cystic fibrosis है, it causes half of all the case of bronchiectasis. This is so common cause. Moving on to your obstructive causes. तो obstruction कैसे हो सकता है? जब वहाँ पे कोई कार्सिनोइड ट्यूमर मास हो, कोई ट्यूमर मास वहाँ पे जाके अटक गया है जिसने ब्लॉक कर दिया है, तो दैट कुड बी। अनदर कुड बी COPD, योर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, नाम में ही समझ आ रहा है। फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, कुछ गलती से एस्पिरेट या अंदर ले लिया हो उसकी वजह से। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन फॉर ब्रोंकिएक्टासिस। ओके, एक्सटेंसिंग कंप्रेशन बाय एनलार्ज लिम्फ नोड्स, जो सराउंडिंग लिम्फ नोड्स हो उनका एनलार्जमेंट हुआ है और उसकी वजह से, वो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की वजह से आपका ब्रोंकाई कंप्रेस हो रहा हो तो, या ड्यू टू एनी इम्पैक्टेड सिक्रीशंस, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था पैथोलॉजी में कि कलेक्शन ऑफ सिक्रीशंस की वजह से भी, जो अगर सिक्रीशंस वहाँ कलेक्ट होने लगे तो उसकी वजह से भी ऑब्लिटरेशन और ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज होगा। Talking about the predisposing factors or you can say the contributing factors or the underlying factors जो disease को और enhance करेंगे या और towards bronchiectasis ले जाएंगे, this could be your impaired host response. Obviously अगर किसी इंसान की weak immunity है तो उसको chances ज़्यादा है होने के। Immunoglobulin deficiencies, impaired mucociliary clearance, मतलब कि जो सीलियाज प्रेजेंट होने चाहिए जो आपके म्यूकस को क्लियर करते हैं सिक्रीशंस को, वो है ही नहीं वहाँ पर, उसका इम्पेयरमेंट है या सीलिया इम्पेयर्ड है। एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, रिपीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, repeated aspiration of acid gastric contents. So these could be the predisposing or contributing factors which morely enhance or which may contribute to bronchiectasis.